So, very good evening, all the participants. So, we'll start with chapter 6. Chapter 6 talks of registration and charge. So, as you know, whenever a charge is created by the company on the assets, it has to be registered with the MCA. So, these are the facts that there is a company and there are fixed assets of the net worth of 8 crores. And in the year 2022, due to positive funds, the company decided to take a loan of 80 lakhs by creating a charge on the assets of the company, that is furniture. The company registered the particulars of the said charge with the registrar within 30 days of its creation, along with the requisite fees and in such manner as may be prescribed, signed by the company and the charge holder together. Now let us discuss some of the issues. So within how many days of its creation, the charge should be registered with the registrar? 30 days. Any section to support this? 77. 77. So it says, it shall be the duty of every company creating a charge within or outside India on its property or assets or any of its undertakings, whether tangible or otherwise, and situated in or outside India, to register the particulars of the charge signed by the company and the charge holder together with the instruments, if any, creating such charge in such a form. So for form, there is form CHG 1 and 9. On payment of such fees and in such manner as may be prescribed with the registrar within 30 days of its creation. The registrar may, on an application by the company, allow registration of charges created on or after the commencement of the company's amendment ordinance. Amendment Act आ गया अब ये Amendment Act 2019. Let me make it Act. ये ordinance नहीं यहाँ पर. Amendment Act 2019. Within a period of how many days? 300. Yes, so it is 300 days. So answer is A. So you can keep on noting down the answers. So these will be available at the end. Because this amendment came at a later date, so they said that if the charges are created on or after the commencement of the Companies Amendment Act, so then they can be registered within a period of 300 days. The charges created before. And if the charges are created on or after 60 days. Yes. So in this case, it is after, on or after. So here the period will be 60 days. Actually, there are two types of periods. One is, suppose the charge was created before the commencement of the Companies Amendment Act 2019. Then the period is 300 days. And in case it is created on or after the commencement of the Companies Amendment Act, then it is within 60 days. Then what is 30 days? So what is the significance of 30 days? ये रजिस्ट्रार के पास कंपनी को जाना होगा, कंपनी को रजिस्ट्रार के पास जाना होगा और उधर रजिस्ट्रार के लिए होगा टाइम. नहीं, देखिए ऐसा है कि आज की डेट में जो प्रोविजन है, अब आज की डेट में कोई चार्ज क्रिएट होगा, उसके लिए पीरियड है 30 डेज. और अब ये क्या है, ये अमेंडमेंट आया था 2019 में. अब उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी चार्जेस क्रिएटेड हैं, ये जब अमेंडमेंट आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, उससे पहले के अगर कोई बचते हैं तो उसके लिए पीरियड कितना है? 300 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन. दूसरा कहता है, इन केस ऑफ चार्जेस क्रिएटेड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ सच क्रिएशन ऑन पेमेंट ऑफ सच एडिशनल फीस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड. इनके लिए क्या है, ये एडिशनल फीस के ऊपर पर होते हैं. ये अगर आपको बिना एडिशनल फीस के जमा कराना है तो आपको कितना कराना है? 30 डेज के अंदर. इसमें एडिशनल फीस लगेगी. इट इज
mandatory for the registrar to issue a certificate of registration of such charge in such form and in such manner as may be prescribed to the company and as the case may be to the person in whose favor the charge is created. तो क्या मैंडेटरी है रजिस्ट्रार के लिए सर्टिफिकेट इशू करना? True. It is given in section 77(2). 77(2), where a charge is registered with the registrar, he shall issue a certificate of registration of such charge in such form and in such manner to the company and as the case may be to the person in whose favor the charge is created. दोनों को ये इशू करें. Now regarding this creation of charge, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं. ये वाला पॉइंट क्या बोलता है? Provided further, second proviso है that if the registration is not made within the period specified, so there are 3 periods basically: 30 days normal limit, then 60 days on or after the commencement of the company's amendment act, and जो charges created थे before the commencement of the company's amendment act उनको करना है within 300 days. ठीक है, with additional fees. तो ये जो 60 days है या 300 days है, it is with additional fees. जो 30 days है वो normal. Second proviso क्या कहता है? Provided further that if the registration is not made within the period specified in clause A to the first proviso. In clause A क्या बोलता है? Clause A बोलता है 300 days. तो 300 days में भी अगर नहीं कराया तो क्या होगा? उसमें क्या था? ऑन पेमेंट ऑफ सच एडिशनल फीस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड एंड डिफरेंट फीस में बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज. तो फिर उसके लिए अलग फीस लगेगी. इन क्लॉज बी टू द फर्स्ट प्रोविजो. क्लॉज बी कौन सी है? 60 डेज. तो रजिस्ट्रार में ऑन एन एप्लीकेशन अलाउ सच रजिस्ट्रेशन टू बी मेड विद इन ए फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज आफ्टर पेमेंट ऑफ सच एड वेलोरम फीस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड. ठीक है, तो उसमें एडिशनल फीस लगी. आज के दिन में समझो ये जो लिखा है कि इन केस ऑफ चार्ज क्रिएटेड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019. अब तो एप्लीकेबल ही नहीं ना. वो तो पुरानी बातें हो गई ना. 19 में आया था वो अमेंडमेंट. 19 में बोला था कि भाई 300 डेज में आप रजिस्टर करा लो. 300 डेज में भी किसी ने रजिस्टर नहीं कराया तो और एडिशनल फीस लगेगी, ये बोला. एंड दैट मे डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. बोला ना, क्लास ऑफ कंपनीज, डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज. तो आज के दिन में अभी करना है तो नॉर्मल कितना पीरियड, आज की डेट में नॉर्मल पीरियड पूछे तो 30 डेज. नेचुरली फिर एडिशनल फीस लगेगी. Now, charge created by the company on its assets shall not be taken into account by the liquidator appointed under this act or the IBC, as the case may be, or any other creditor, unless it is duly registered and a certificate of registration of such charge is given by the registrar. ठीक है, whether it is true or false. ये बोलता है Section 77, subsection 3. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no charge created by a company shall be taken into account by the liquidator appointed under this act or the IBC, as the case may be, or any other creditor, unless it is duly registered under subsection 1 and a certificate of registration of such charge is given by the registrar. So basically, because secured creditor actually have got different rights, and unless this charge is registered with the registrar, so no notice shall be taken by the liquidator. So liquidator will consider it unsecured unless a charge is created and registered with the registrar. This is the meaning. If any company makes a default in complying with any of the provisions of chapter 6 regarding registration of charge, so what is the penalty on the company? Punishment for contravention. This is given in section 86. So if any company is in default in complying with any of the provisions of this chapter, the company shall be liable to a penalty of 5 lakh rupees, and every officer of the company shall be liable to a penalty of 50,000 rupees. So 5 lakh on company and on officer 50,000 rupees. ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा इसको. आप इसके साथ सेक्शन भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसी में नीचे सेक्शन मार्क कर लीजिए. सेक्शन है 86.
हाँ, सेक्शन 86 86 सबसेक्शन 1। हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, ए कंपनी शैल गिव इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द पेमेंट और सेटिस्फेक्शन इन फुल ऑफ एनी चार्ज रजिस्टर्ड अंडर दिस चैप्टर विद इन ए पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सच पेमेंट और सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज सेक्शन 82, सेक्शन 82 टॉक्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। क्या बोलता है? ए कंपनी शैल गिव इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन पेमेंट, इसका फॉर्म है CHG 4 and 5। A company shall give intimation to the registrar in the prescribed form of the payment or satisfaction in full within a period of 30 days from 30 the days, 30 such days. payment। तो बेसिकली 30 days फॉर क्रिएशन है, 30 days फॉर सेटिस्फेक्शन है। सिंपल बात ये याद रख सकते हो आप। नाउ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेट अस सी सेक्शन 96 to 122। 88 है ना, 88 से लेकर है ना, हाँ जी, सेक्शन 8, हाँ सेक्शन जी, 88 से लेकर है ना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन 88 ऑनवर्ड्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, 88 ऑनवर्ड्स। हाँ, वो एक्चुअली इसने क्वेश्चंस इस पर सेट किए होंगे ना, इसलिए ऐसा लिख दिया शायद। द फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन डैश फ्रॉम द डेट डैश ऑफ द कंपनी। फर्स्ट एजीएम कितने दिन में करनी है? Within 9 months. Mm, सेक्शन date closing of the first financial year. C. सेक्शन आपका 96। Provided that in the case of the first annual general meeting, it shall be held within a period of 9 months from the date of the closing of the first financial year of the company, and in any other case within a period of 6 months from the date of the closing of the financial year। So first में 9 months है और बाकी सालों में 6 months। तो फर्स्ट एजीएम का पूछ रहा है, तो विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ, कौन सी डेट से? Closing of the first financial year. हाँ, डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया 96 सबसेक्शन 1। बाद वाले में तो हमने सेक्शन लिख दिए थे, उसमें सेक्शन रह गए थे। द एजीएम अदर देन द फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन, अदर देन फर्स्ट एजीएम कितने में करनी है? फटाफट कर लेते हैं। 6 months हो जाएगा ये, है ना? 6 months हाँ। द रेट ऑफ Closing of the financial year. क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, है ना? डी हाँ। ऑप्शन हो जाएगा। हम्म, ठीक, ये 96 सबसेक्शन 1। हमारे लिए The difference between one AGM and next AGM should not be more than, दोनों AGM के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए मैक्सिमम? 15 months. 15 months। ओके। और ये बात कहाँ लिखी गई है? नाइन्टी सिक्स वन 96 वन वन सबसेक्शन हाँ, 1, बिल्कुल ठीक है। 96 सबसेक्शन नॉट मोर देन 15 months। हाँ, नॉट मोर देन 15 months, बिल्कुल ठीक है। The registrar may for any special reason extend the time within which any AGM other than the first AGM shall be held by a period not exceeding 3 months। 3 months. ठीक है, ये हमारा ये थर्ड प्रोवाइजो हो गया। 96(1) थर्ड प्रोवाइजो। The AGM of the company may be held at, AGM करनी कहाँ? Registered office of the company. हाँ नहीं, रजिस्टर्ड तो ठीक है, रजिस्टर्ड तो है ही है।
उसके अलावा कहाँ कहाँ हो सकती है? At some other place within the city, town, village, 96 which the 90 registered office of the company is situated. 96(2) देख लीजिए, 96(2). 96(2). A and B. हाँ, at the registered office of the company or at some other place within the city, town or village in which the registered office of the company is situated. तो ए और बी हो जाएगा इसमें, है ना? हाँ, ठीक। तो इसका ये हो गया 96(2), है ना? चल, the AGM of the unlisted company may be held at unlisted company. Any place in India Any place in India को प्रोवाइजो है, 2 if का consent प्रोवाइजो, is given. Yes. 2 का प्रोवाइजो है। हाँ, 2 का फर्स्ट प्रोवाइजो, 96(2) फर्स्ट प्रोवाइजो, These are सेक्शन 96(2) फर्स्ट प्रोवाइजो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इट मे बी हेल्ड any place in at place in India if consent is given in writing writing by or by electronic mode by all the members in advance. सही। नेक्स्ट देखते हैं। If any default is made in holding the AGM of a company under section 96, the tribunal may, on the application of any member of the company, call or direct the calling of an AGM of the company, and for this purpose, one member present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting. 97 में दिया हुआ, ये 97(1) बोलता है if any default is made in holding the annual general meeting of a company under section 96, the tribunal may, notwithstanding anything contained in this act or the articles of the company, on the application of any member of the company, call or direct the calling of an annual general meeting of the company and give such ancillary or consequential directions as the tribunal thinks expedient, provided that such directions may include a direction that one member of the company present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting. ठीक है, True. तो ट्रू हो जाएगा। True. ये हो गया हमारा 97(1), सेक्शन 97(1). एक मेंबर भी हो सकता है। द ट्रिब्यूनल इज इंटरेस्टेड with the power of calling, holding or conducting a meeting of the company other than an AGM on the application of any director or member of the company or suo motu, and for this purpose one member present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting. Power of tribunal 98(1)(b), I think. So the tribunal may either suo motu or on the application of any director. Yes, तो इसमें भी एक आदमी भी हो सकता है। Right, right. ठीक है ना? तो ट्रू हो जाएगा ये। तो दिस इज 98(1). If any default is made in holding a meeting of the company in accordance with the provisions of 96 or 97 or 98 or in complying with the direction, the company and every officer, तो पनिशमेंट कितनी है? पनिशमेंट दिया हुआ आपका 99 के अंदर। तो 99 में कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, क्या बोल रहा है? कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, तो पनिशमेंट कितनी है? 5 lakhs होगा। हाँ, लिखता है फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज एंड केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट विद ए फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज फॉर एवरी डे। तो 1 लाख है और इट में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज फॉर एवरी डे। A is the correct. हाँ, 1 लाख एंड 5,000 रुपीज। हाँ, तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, 99(1). नेक्स्ट देखते हैं। द बोर्ड में whenever it deems fit call an extraordinary general meeting of the company. बोर्ड जो है कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकता है। True, सही है, true. गलत है? ये true है। यस, so this is true, section 100 subsection 1.
नेक्स्ट देखते हैं, द नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी गिवन टू, नोटिस किस किस को दिया जाना है? ये आपका है सेक्शन 101 सब सेक्शन 3, every member of the company, legal representative of any deceased member or the assignee of an insolvent member, the auditor or auditors of the company and every director of the company, सभी को नोटिस देना। All of the above. F. हाँ हाँ, एफ हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 101 सब सेक्शन 3, ए जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी मे बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन, कितना क्लियर डेज नोटिस होना चाहिए? 21 days. हाँ 21 डेज हो जाएगा ना, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, 101 Clear notice. 21 days clear day notice. हाँ, क्लियर डेज का मतलब क्या होता है? वो जो दिन देता है वो छोड़ के जब रिसीव करता है यस, रिसीविंग डे और Repeat डिस्पैच डे, डेट ऑफ डिस्पैच दोनों को एक्सक्लूड करना है। एवरी नोटिस ऑफ ए मीटिंग शेल स्पेसिफाई, नोटिस में क्या क्या देना है? place date. ये सेक्शन 101 सब सेक्शन 2, प्लेस देना है, डेट Day. देना है, डे एंड आवर, 4 चीजें देनी है, एंड स्टेटमेंट ऑफ द Statement. बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड। All of the above. हाँ, तो ये सारी All चीजें, of them. हाँ, डे तो ठीक है, आवर भी देना है, मेन चीज ये है। A statement setting out the material facts concerning each item of special business to be transacted at a general meeting shall be annexed to the notice calling such meeting. Such a statement should include the nature of concern or interest, financial or otherwise, if any, in respect of each items of. ये स्पेशल बिजनेस की बात कर रहा है कि स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट जनरल मीटिंग। तो स्टेटमेंट ऐसी किस किस को देनी है? Every director and manager, if any, every other KMP, relatives of the persons mentioned in sub clause 1 and 2. Any other information and facts that may enable members to understand the meaning, scope and implications of the items of business and to take decisions thereon. ठीक है ना? तो ये रिलेटिव्स का कंसेप्ट कहा क्या है, समझ में नहीं, रिलेटिव्स होते हैं भाई, ऐसा है ना, देखो, नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, फाइनेंशियल और अदरवाइज, ये जो डायरेक्टर है, इफ ए डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड तो उसका इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। नेचर ऑफ कंसर्न, भाई डायरेक्टर की मान लो रिलेटिव की कोई कंपनी है, उसको डिस्क्लोज करना है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये मेरी रिलेटिव की कंपनी के साथ हो रही है, मैं रिलेटेड पार्टी हूं या मैं इसमें कंसर्न हूं। ये है कंसर्न और इंटरेस्ट की बात कर रहा है, फाइनेंशियल और अदरवाइज। भाई ड्यू टू रिलेशनशिप देयर में भी इंटरेस्ट, ड्यू टू फाइनेंशियल देयर में भी इंटरेस्ट। सपोज ये किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो ये बताएगा, डायरेक्टर विल टेल दैट ओके यू आर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस विद दिस कंपनी बट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। तो वो क्या होता है, उस रेजोल्यूशन में फिर वो पार्ट नहीं लेता। ये है बेसिकली द पॉइंट हियर इज नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, फाइनेंशियल और अदरवाइज। इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, ये सेक्शन 103(1)(a) के ऊपर है। क्या बोलता है? पब्लिक कंपनी में कितने नंबर होने चाहिए? फाइव मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। 5 मेंबर्स है, अगर इफ इट इज नॉट मोर देन 1000, ठीक है ना? तो आंसर इसका हो जाएगा ए। अच्छा, इन द केस ऑफ कंपनी, अगर मोर देन 1000 है बट अप टू 5000 है तो कितने होने चाहिए? 30 members. है 15 होने चाहिए मेरे ख्याल, 15, यस 15 है ना? हाँ, क्योंकि बोला है अगर 1000 से अप टू 5000 है तो 1000 अप टू 5000 तो 15 हो जाएगा, ठीक है ना? और सेकेंड, हाँ एक्सीड 5000, हाँ, अगर 30. मोर देन 5000 है तो 30, ठीक है, तो इसमें सी हो जाएगा, ठीक है।
इन द केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, अब प्राइवेट कंपनी में क्या होगा? प्राइवेट कंपनी में लास्ट वाला 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द सफिशिएंट quorum फॉर मीटिंग ऑफ द कंपनी, क्योंकि कोई कंपनी ऐसी होती है जिसमें 2 ही मेंबर होते हैं, 2 ही डायरेक्टर होते हैं, 2 ही मेंबर होते हैं, तो वहां quorum है 2 मेंबर्स का, बस ये ध्यान रखना। If the quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding a meeting of the company, अगर quorum present नहीं है within half an hour तो क्या होगा? तो meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place। तो next week इसमें important है ना? जैसे CIRP में तो क्या होता है, नेक्स्ट डे हो जाती है ना, नेक्स्ट डे हो जाता है, हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ नेक्स्ट वीक है, ये थोड़ा ध्यान नेक्स्ट रखना। वीक। Next week at the same time and place or to such other date and such other time and place as the board may determine। ठीक है, ये and the meeting if called by the requisiteness under section 100 shall stand cancelled। ठीक है, अगर कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं बुलाते तो फिर वो रिक्विजिटनेस मीटिंग बुला सकते हैं, दैट इज प्रोविजन इज गिवन इन सेक्शन 100। तो अगर ऐसी मीटिंग बुलाई है और कोरम प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो कैंसिल हो जाएगी। ये गैलेक्सी 17 में क्या आवाज आ रही है, सो रहे हैं क्या? ये ऐसे कुछ आवाज आ रही है जैसे खराटे ले रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या? नहीं सर। अच्छा ऐसा मुझे लगा 103 सबसेक्शन 3 क्या क्या बोलता है? if at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour, भाई adjourn हो गई नेक्स्ट वीक में, फिर भी quorum नहीं हुआ तो क्या होगा? the members present shall be the quorum। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, सेक्शन 103 सबसेक्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग विल बी इलेक्टेड थ्रू, चेयरमैन कैसे इलेक्ट होगा? show of hands। हाँ, तो ये आपका ये है इसमें 104 ही होगा। सेक्शन 104। तो अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, या तो कंपनी आर्टिकल्स में लिखा होगा, अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा, ठीक है ना, तो मेंबर्स प्रेजेंट, कई बार आर्टिकल्स में लिख देते हैं भाई यही मीटिंग का चेयरमैन होगा, ठीक है ना, तो अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड द मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग shall elect one of themselves to be the chairman thereof on a show of hands। if a poll is demanded on the election of the chairman, कोई पोल डिमांड कर सकते हैं, ठीक है ना, it shall be taken forthwith in accordance with the provisions of this act, and the chairman elected on a show of hands shall continue to be the chairman of the meeting until some other person is elected as chairman as a result of the poll। ठीक है, and such other person shall be the chairman for the rest of the meeting। ठीक है, three different options। The CG may prescribe a class or classes of companies whose members shall not be entitled to appoint another person as a proxy। सेक्शन 105 इसका आंसर देता है, वो ये कहता है कि the central government may prescribe a class or classes of companies whose members shall not be entitled to appoint another person as a proxy। ट्रू। हाँ, तो दिस इज ट्रू। ये हमारा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोवाइजो, सेक्शन 105 सब सेक्शन 1 थर्ड प्रोवाइजो। A person appointed as a proxy shall act on behalf of such 105 फोर्थ प्रोवाइजो क्या बोलता है? ऑन बिहाफ ऑफ सच मेंबर और नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 50 and such number of shares as may be prescribed। तीनों, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, तो तीनों चीजें हैं।
ऑन बिहाफ ऑफ, मान लो एक मेंबर ने अपॉइंट किया तो एक के बिहाफ पे होगा, ठीक है, या 50 से ज्यादा के लिए नहीं हो सकता, या एंड सच नंबर ऑफ शेयर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ये फिर आपको इसका रूल 19 देखना पड़ेगा और फॉर्म एमजीटी 11 देखना पड़ेगा। Any member of the company shall be entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote at the meeting on his behalf, provided that a proxy shall not have the right to speak at such meeting and shall not be entitled to vote except on a poll. तो प्रॉक्सी जो है सिर्फ क्या है, he doesn't have any right to speak at the meeting, ठीक है, and he shall not be entitled to vote except on a poll. हाँ जी, दिस इज ट्रू। हाँ, और ये बात लिखी कहां पर है? सेक्शन 105। सेक्शन 105 सब सेक्शन 1। इसका जो फर्स्ट प्रोवाइजो में बात लिखी, ए मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट ए मीटिंग ऑफ द कंपनी which has a share capital or the articles of which provide for voting by proxy at the meeting is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and vote, and that a proxy need not be a member. ये हमारा सेक्शन 105 सबसेक्शन 2। क्या बोलता है सेक्शन 105 सबसेक्शन 2? बोलता है इन एवरी नोटिस कॉलिंग ए मीटिंग ऑफ द कमिटी विच हैज अ शेयर कैपिटल और द आर्टिकल्स ऑफ विच प्रोवाइड फॉर वोटिंग बाय प्रॉक्सी एट द मीटिंग देयर शैल अपीयर with reasonable prominence statement that a member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy, or where that is allowed, one or more proxies to attend and vote instead of himself, and that a proxy need not be a member. ठीक है, तो ये बात लिख दी जाती है नोटिस में, ठीक है ना। तो इन एवरी नोटिस कॉलिंग ए मीटिंग, नोटिस में ये बात लिख दी जाती है। If default is made in complying with subsection 2 of section 105, तो every officer of the company, तो कितना इस पे पेनल्टी है, ये आपको दे रखी है सेक्शन 105 सबसेक्शन 3 में, पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज। The instrument appointing a proxy shall be, जो इंस्ट्रूमेंट लाएगा वो प्रॉक्सी वाला, वो राइटिंग में होगा, signed by the appointer or his attorney duly authorized in writing, under the seal of the company or signed by an officer or an attorney duly authorized by it, if the appointer is a body corporate, all of the above. और ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात आपको लिखी गई है सेक्शन 105 सब सेक्शन 6 में। The instrument appointing a proxy shall be in writing and be signed by the appointer or his attorney, or if the appointer is a body corporate, be under its seal. तो 105 subsection 6। A company shall not prohibit any member from exercising his voting right except on the grounds, कंपनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट्स के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। पहली तो बात है भाई, कॉल्स अगर पेड नहीं है तो, ठीक है ना, और इन रिगार्ड टू विच द कंपनी हैज एक्सरसाइज्ड एनी राइट ऑफ लियन, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में कंपनी में प्रोहिबिट ए मेंबर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज वोटिंग राइट।
इसके अलावा किसी ग्राउंड पे नहीं रोक सकते। कौन कौन से दो ग्राउंड है? पहला, एक तो कॉल्स हैव नॉट बीन पेड, ठीक है ना, और दूसरा इन रिगार्ड टू विच द कंपनी हैज एक्सरसाइज्ड एनी राइट ऑफ लीव। सेक्शन 106 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं। A member entitled to more than one vote or his proxy or any other person entitled to vote for the member need not, if he votes, use all his votes or cast in the same way all the votes he uses। मतलब एक के पास, एक आदमी के पास एक से ज्यादा प्रॉक्सी है ना, 50 तक हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि सारी की सारी प्रॉक्सी वो एक ही तरह से यूज करे। कुछ में वो फेवर में कर सकता है, कुछ में अगेंस्ट कर सकता है। ये बात सच है या गलत है? बात ये इतना सा पूछ रहा है। This is true. On a poll taken at a meeting of a company, a member entitled to more than one vote or his proxy were allowed, or other person entitled to vote for him, as the case may be, need not, if he votes, use all his votes or cast in the same way all the votes he uses। So this is true। Section 106 subsection 3। वो हो सकता है भाई 25 के लिए एक तरह से यूज करे, 25 के लिए दूसरी तरह से, कुछ भी कर सकते। At any general meeting of the company, a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands। Not seven. ये हमारा बात दी गई है सेक्शन 107 में। अनलेस द पोल इज डिमांडेड, ठीक है, अंडर सेक्शन 109, और द वोटिंग इज कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली। तो दोनों चीज, तो पहला पहला सही हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, है ना। तो दिस इज पार्शियली ट्रू। नॉर्मली ऑन शो ऑफ हैंड हो जाता है अनलेस ए पोल इज डिमांडेड और वोटिंग इज कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली। Section 107 subsection 1। Next thing. At any general meeting of the company, a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands। इससे पहले वाला क्या था कुछ? ये 30 था। अच्छा, ये एक ही सवाल हो गया दोनों में, हम गलती से ऐसा लगा। एक ही है। A declaration by the chairman of the meeting of the passing of a resolution or otherwise by show of hands and an entry to that effect in the book containing the minutes of the meeting of the company। मतलब एक रेजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है, और उसकी एंट्री हो गई मिनट्स ऑफ मीटिंग में। तो ये क्या है? ये कंक्लूसिव एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, क्या है? इट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस। Conclusive evidence. हाँ, तो ये पहला हो जाएगा आंसर, इसका यही हो जाएगा। सेक्शन 7. 107 सबसेक्शन 2। The central government may prescribe the class or classes of companies and the manner in which a member may exercise his right to vote by the electronic means। बिल्कुल सही है, सेक्शन 108 ये बात। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एंड द मैनर इन विच ए मेंबर में एक्सरसाइजेस राइट टू वोट बाय द इलेक्ट्रॉनिक मींस। The chairman of the meeting may, on his own motion or on a demand made in that behalf, order a poll at the meeting on such resolution। ये बात सही है, गलत है? Section 109 subsection 1। Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting on his own motion and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf। ठीक है, True. सही। कुछ कंडीशंस हैं। A demand for a poll in the case of a company having share capital may be made। डिपेंड करेगा, इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल है तो उस केस में क्या होगा? इट मे बी मेड बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी वेयर अलाउड and having not less than 1/10 of the total voting power or holding shares on which an aggregate sum of not less than 5 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed has been paid up।
तो ये दोनों कंडीशंस। ए डिमांड फॉर ए पोल इन द केस ऑफ ए कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, बाई एनी मेंबर और मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और बाई प्रॉक्सी वी आर अलाउड एंड हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। तो दूसरे वाली कंडीशन नहीं है इसका आंसर क्या होगा? ए एंड बी। बी तो नहीं है ना इसमें, बी वाली कंडीशन है ही नहीं इसमें। वो तो कंपनी में हैविंग शेयर कैपिटल है, उसमें है, इसमें किस कंपनी में शेयर कैपिटल है? राइट राइट। हाँ, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken. अगर जो भी पोल का रिजल्ट आएगा, that shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken. ये हो जाएगा आपका सेक्शन 109 सबसेक्शन 7। द रिजल्ट ऑफ द पोल शैल बी डीम्ड टू द डिसीजन ऑफ द मीटिंग ऑन द रेजोल्यूशन ऑन व्हिच द पोल वाज टेकन। इफ ए रेजोल्यूशन इज असेंटेड टू बाय द रिक्विजिट majority of the shareholders by means of a postal ballot, it shall be deemed to have been duly passed at a general meeting convened in that behalf. पोस्टल बैलेट में अगर रिक्विजिट मेजोरिटी आ गई तो क्या वैलिड मान ली जाएगी? दिस आंसर इज गिवन इन सेक्शन 110 सबसेक्शन 2। If a resolution is assented to by the requisite majority of the shareholders by means of postal ballot, it shall be deemed to have been duly passed at a general meeting convened in that behalf. So this is true. A company shall, on requisition rewriting of such a number of members as required in section 100, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी वाले मीटिंग कॉल नहीं कर रहे हैं, मेंबर्स कॉल कर रहे हैं। रिक्विजिशन आई है लोगों की, ठीक है। कितने मेंबर्स की रिक्विजिशन आई है? ये सेक्शन 100 में दिया हुआ। तो उस केस में क्या होगा? दिस इज गिवन इन सेक्शन 111। So they may give notice to members of any resolution which may be properly moved and is intended to be moved at a meeting, and circulate to members any statement with respect to the matters referred to in proposed resolution or business to be dealt with at that meeting, ठीक है। राइट। तो ये दोनों हो जाएगा ए एंड बी। The company shall not be bound to circulate any statement as required by clause B of subsection 1 of section 111 if on the application either of the company or of any other person who claims to be aggrieved this is given in section 111 subsection 3। तो आंसर क्या होगा इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, एनसीएलटी होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर डिक्लेयर्स that the rights conferred by this section are being abused to secure needless publicity for defamatory matter। कई बार क्या होता है कि एक आदमी को बदनाम करने के लिए नोटिस दिया जाता है इस तरह से मीटिंग, तो वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जहां मतलब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रीजनल डायरेक्टर होता है। वो रीजनल डायरेक्टर के थ्रू पावर एक्सरसाइज होती है बेसिकली। पावर्स आर डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर्स एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली, इलाहाबाद, अहमदाबाद, हैदराबाद एंड शिलांग। तो इन रीजनल डायरेक्टर्स के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट जहां जहां भी लिखा है तो आरडी के थ्रू ही करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 111, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी। पेनल्टी कितनी लगेगी? 5,000 रुपीज। 25,000 रुपीज। इसमें ये अलग अलग है, पेनल्टी इसमें 25,000 रुपीज है। बी आंसर है इसका। सेक्शन 112 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? डैश एंड डैश। सेक्शन 112 एंड सबसेक्शन 1 इफ वी रीड, क्या बोलता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो आंसर इसका बी आंसर हो जाएगा इसका सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इफ इज ए मेंबर ऑफ ए कंपनी। मान लो प्रेसिडेंट ही मेंबर है कंपनी का, ठीक है, होता है गवर्नमेंट कंपनी में।
तो दे मे अपॉइंट सच पर्सन एज ए थिंग्स फिट टू एक्ट एज हिज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं उसको आना पड़ेगा। By which of the following types of body corporate a representative in a company may be appointed by resolution of its board of directors or other governing body? ये रिप्रेजेंटेशन के ऊपर सेक्शन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस एट मीटिंग्स ऑफ कंपनीज एंड ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है भाई, एक बॉडी कॉर्पोरेट मान लो शेयर होल्डर है, तो बॉडी कॉर्पोरेट भी तो किसी को भेजेगी ना। तो कौन कौन सी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो सकता है? सेक्शन 103(13) सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? ए बॉडी कॉर्पोरेट whether a company within the meaning of this act or not may, if it is a member of the company within the meaning of this act, by resolution of its board of directors or other governing body, authorize such person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the company or at any meeting of any class of members of the company. If it is a creditor, including holder of debentures of a company within the meaning of this act, by the resolution of its directors or other governing body. देखो पहले में क्या लिखा है? पहले में लिखा है अगर मेंबर है, मेंबर में क्या है? रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए या अदर गवर्निंग बॉडी चाहिए, और अगर क्रेडिटर है तो रेजोल्यूशन चाहिए डायरेक्टर्स का या अदर गवर्निंग बॉडी का। दोनों में ये फर्क है। A resolution shall be called an ordinary resolution. अब ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या फर्क है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन सी होती है? 50%, स्पेशल 3/4। हाँ, सेक्शन 114(1), सेक्शन 114(1) बोलता है रेजोल्यूशन शैल बी एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन if the notice required under this act has been duly given and it is required to be passed by the votes cast whether on a show of hands or electronically or on a poll as the case may be in favor of the resolution, including the casting vote if any of the chairman by members who being entitled so to do vote in person or where proxies are allowed by proxy or by postal ballot exceeds the vote if any cast against the resolution. All the above. और स्पेशल रेजोल्यूशन कौन सी होती है? 3/4, 75% majority. ये हो गया। आर रिक्वायर्ड टू बी नॉट लेस देन 3 times द नंबर ऑफ द वोट्स इफ एनी कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तो ये हो गई आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन, सेक्शन 114 सबसेक्शन 2। तो सबसे पहले तो ये कि आपको नोटिस में भी लिखना है इस बात को कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन है। नोटिस जब आप दोगे ना रेजोल्यूशन का, उस नोटिस में भी लिखा जाएगा कि भाई ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। ठीक है, और वोट्स जो कास्ट है दे आर नॉट लेस देन 3 times द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट। स्पेशल नोटिस ऑफ एनी रेजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी बाय सेक्शन 115। तो स्पेशल नोटिस किसको देना? ये रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। देखो दोनों में फर्क है, एक तो है स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन अलग है, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस अलग है। ये आपका है सेक्शन 115, whereby any provision contained in this act or in the articles of the company, special notice is required of any resolution. Notice of the intention to move such a resolution shall be given to the company by such a number of members holding not less than 1% of the total voting power or holding shares on which such aggregate sum not exceeding 5 lakh has been paid up. And the company shall give its members notice of the resolution in such manner as may be prescribed. A and C.
नहीं वो तो ठीक है, अब ये 5 लाख जो है ये पेड अप है या सब्सक्राइब्ड है, बात ये है। पेड अप। हाँ पेड अप है, बिल्कुल ठीक। और होल्डिंग नॉट लेस देन 1% टोटल वोटिंग पावर है या शेयर कैपिटल है? वोटिंग पावर। हाँ वोटिंग पावर है। तो ए एंड सी हो जाए, ठीक है। सेक्शन 115, रेजोल्यूशन पास एट एन एडजर्न मीटिंग शैल बी ट्रीटेड, ये कब पास मान ली जाएगी? ऑन द डेट ऑन विच it was in fact passed and shall not be deemed to have been passed at any earlier date। ठीक है, मतलब ये कि अगर मीटिंग एडजर्न हो गई तो मीटिंग किस, ये जो रेजोल्यूशन है किस डेट को पास मानी जाएगी? ये उस डेट को पास मानी जाएगी जिस डेट को मीटिंग हुई है। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। एंड शैल बी नॉट बी have been passed on any earlier date, तो आंसर बी हो जाएगा। A copy of every resolution or any agreement in respect of matters specified in subsection 3 of section 117, together with the explanatory statement under section 102, shall be filed with the registrar। ये section 117 subsection 1 बोलता है कि resolutions and agreements to be filed। जितनी भी resolution पास होती है, a copy of every resolution or any agreement in respect of matters specified in subsection 3, subsection 3 में कौन से हैं? जो भी special resolutions हैं या resolutions which have been agreed to by all the members of the company, any resolution of the board of directors of a company, appointment, reappointment, तो कुछ specified resolutions हैं, तो इनकी आपको कॉपी आपको क्या करनी है? ये फाइल करनी है रजिस्ट्रार के पास। कितने पीरियड में फाइल करनी है? 30 days। ये फाइल करनी है आपको विद इन 30 डेज। 30 और डेज। कौन कौन सी ये रेजोल्यूशन है ये भी दिया हुआ है, स्पेशल रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशंस व्हिच हैव बीन एग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, a resolution of the board of directors of the company relating to appointment, reappointment, renewal of the appointment, a resolution recommended which have been agreed to by any class of members, तो ये resolution requiring a company to be wound up, तो ये सारी जो resolutions हैं ये सारी आपको रजिस्ट्रार को देनी है विद इन 30 डेज। ये क्या होगा? अच्छा वो गलती से होम दब गया। ये तो हो गया ना, हमारा एजीएम तो चल रहा है ना। हाँ हमारे सेक्शन कहाँ तक हो गए कवर? 117 तक। चलो आज तो थोड़ा स्पीड ठीक है हमारी, है ना। हाँ अगर कोई डिफॉल्ट होता है, मान लीजिए कोई रेजोल्यूशन पास ये देनी थी कॉपी रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज, दी नहीं तो क्या होगा? तो पेनल्टी कितनी है? कंपनी के ऊपर पेनल्टी है 10,000 रुपीज, एन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद ए फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज 100। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख। राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसको? हाँ जी, कौन सा आंसर होगा? ए और बी तो सेम ही है सर। नहीं नहीं, ए और बी में थोड़ा सा फर्क है। ए में लिख दिया और लिख दिया 10,000 रुपीज और, बी में लिख दिया 10,000 रुपीज एंड। एंड होगा। हाँ तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इफ एनी कंपनी फेल्स टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 117, तो ऑफिसर के ऊपर क्या पेनल्टी है? वो तो कंपनी के ऊपर हो गई, ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी है 10,000 रुपीज और 100 रुपीज फॉर ईच डे, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। ये कैसे हो जाएगा? ए और सी को ध्यान से देखो, मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए।
क्या डिफरेंस है? ऑड है, ओ सी होना चाहिए। सी। The minutes of each meeting shall contain a fair and correct summary of the proceedings thereat. मिनट्स में जो है ये है आपका सेक्शन 118। ट्रू। There dash be included in the minutes any matter which in the opinion of the chairman of the meeting is or could reasonably be regarded as defamatory of any person, is irrelevant or immaterial, is detrimental. तो क्या आंसर होगा? Shall, may not, may, shall not. देयर मे Section 118 subsection 5 there shall not, शैल नॉट, shall not लिखा है तो आंसर इसका डी हो जाएगा। शैल नॉट। भाई लगता है कोई डिफेमेटरी मैटर है या कुछ है तो उसको इंक्लूड आपको नहीं करना। In the case of a meeting of the board of directors or of a committee of the board, the minutes shall also contain. ये सेक्शन 118 है सबसेक्शन 4 names of the directors present to the meeting. In the case of each resolution passed at the meeting, the names of the directors, if any, dissenting from or not concurring with the resolution. तो ये दोनों चीजें देनी है, जो प्रेजेंट थे और जो रेजोल्यूशन में names of directors if any dissenting from or not concurring with the resolution है, तो सारे तीनों चीजें देनी है इसमें। ऑल द अबव। The minutes kept in accordance with the provisions of this section shall be Evidence. हाँ, तो shall be the evidence of the proceedings. तो एविडेंस तो कोई है ही नहीं इसमें। डायरेक्ट एविडेंस है। हाँ, तो इसका none of the above is correct हो जाएगा। एविडेंस आंसर ये हो जाएगा इसका। भाई आंसर ये हो जाएगा ना, आंसर ई हो जाएगा। None of the above is correct. 55. If default is made in complying with the provisions of this section in respect of any meeting, the company shall be liable to a penalty of 25,000. ये आपका 118 सबसेक्शन 11 हाँ 25,000 रुपीज 5,000 और ऑफिसर के ऊपर कितना है 5,000 रुपीज। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। If a person is found guilty of tampering with the minutes of the proceedings of the meeting, he shall be punishable with। ये आपका सेक्शन 118 सबसेक्शन 12। 25,000. हाँ, इम्प्रिजनमेंट भी है इसमें। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which may extend to 2 years। 2 years। ठीक है, एक तो वर्ड मे लिखा है इसमें, ठीक है ना, तो which may extend to 2 years and with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees। तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगी? डी। ना डी ना, सी। सी हो जाएगी, बिल्कुल सही। विच में एक्सटेंड टू 2 years लिखा है। तो फिर तो बी होनी चाहिए ऑप्शन। ऑप्शन बी होनी चाहिए, है ना। बी और सी में फर्क क्या है? बी सी में अप टू लिखा है, बी में 2 लिखा है। तो एक्ट में लिखा 2, अप टू नहीं लिखा, एक्सटेंड के बाद 2 लिखा। The books containing the minutes of the proceedings of any general meeting of or of a resolution passed by postal ballot, ये कहां पर रखनी है? सेक्शन 119 इसका आंसर देता है। At the registered office of the company and be open during business hours to the inspection by any member without charge
be subject to such reasonable restrictions as the company may impose, so that not less than 2 hours in each beach this day are allowed for inspection. ठीक, तो ये तीनों all liable. हाँ. Any member shall be entitled to be furnished with a copy of any minutes referred to in subsection 1 of section 19 within, तो कितने दिन के अंदर देनी है? 7 हाँ, तो 7 या 7 वर्किंग, working. हाँ 7 वर्किंग, तो 7 आंसर डी, working. आंसर डी हो जाएगा इसको. If default is made in complying with the provisions of section 1 or 2 of or both of section 119, तो कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी है? 25,000. हाँ, कंपनी के ऊपर पेनल्टी है 25,000 रुपीज, और ऑफिसर के ऊपर कितनी पेनल्टी है? 5,000. हाँ, ऑफिसर के ऊपर है 5,000 रुपीज फॉर ईच सच रिफ्यूजल और डिफॉल्ट. ठीक है. एनी डॉक्यूमेंट, रजिस्टर, minutes required to be kept by a company or allowed to be inspected or copies to be taken to be given to any person by a company under this act may be kept or inspected or copies given as the case may be in electronic form in such form and manner as may be prescribed. ये आपका दिया हुआ सेक्शन 120 में. Any document, record, register, minutes required to be kept by a company or allowed to be inspected or copies to be given to any person by a company under this act may be kept or inspected or copies given as the case may be. यहाँ कॉमा लगा देते हैं, कॉमा नहीं लगा रखे इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. copies given as the case may be Electronic form. in electronic form in such form and manner as may be prescribed. सही है, बिल्कुल ठीक. ठीक है. और प्रेस्क्राइब्ड के लिए फिर आपका रूल है ये, आपको फिर रूल देखना पड़ेगा. रूल 27, 28, 29 एंड 30 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स. द कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 121. 121 है रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग. विद इन कितने दिन के अंदर देनी है? विद इन डैश ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम. Within 15 days. Within 30 days. Within 30 days. Within 30 days. ये रिपोर्ट ऑन एजीएम इसको कर देता हूँ, यहाँ कॉमे में लिख देता हूँ रिपोर्ट ऑन एजीएम. So within 30 days. If a company fails to file the report under subsection 2 of section 121 as required, such company shall be liable to a penalty of 1 lakh. रिपोर्ट हो जाएगी हमारी रिपोर्ट ऑन एजीएम. 1 lakh and 100 per day. Up to 2 lakhs. 1 लाख रुपीज और कंटिन्यूइंग में है 500 रुपीज सब्जेक्ट टू 5 लाख रुपीज. तो पहला तो 1 लाख रुपीज है एंड केस ऑफ कंटिन्यूइंग वर्ड, और ये हो गया आपका फर्दर पेनल्टी हो गई 500 रुपीज. ये भी ठीक है. फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज. ठीक है. अब ए और सी में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, क्या फर्क है? कुछ डिफरेंस है क्या ए और सी में? यहाँ पर 100 रुपीज लिखा है, यहाँ लिखा है 500 रुपीज. तो ये 500 रुपीज, तो आंसर ए हो जाएगा, है ना. 1 लाख रुपीज एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद ए फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज फॉर ईच डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज. अब ऑफिसर के ऊपर कितनी पेनल्टी है? ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी है 25,000 रुपीज तो है ही. ठीक है. एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर with a further penalty of 500 rupees and subject to maximum of 1 lakh. तो 1 लाख अगर मैक्सिमम है तो हमारा ए और डी ऑप्शन में से हो गया.
अब ए और डी में देख लेते हैं क्या फर्क है। इसमें 500 है, ठीक है ना, तो हमारा डी हो जाएगा जी, डी नहीं ए हो जाएगा। तो 25,000 रुपीज, और कंटिन्यूइंग वैल्यू में 500 रुपीज फॉर ईच डे है, और मैक्सिमम है 1,00,000 रुपीज। अच्छा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग contained in this act, or where there is only one director on the board of directors of a one-person company, any business which is required to be transacted at the meeting of the board of directors of a company, it shall be sufficient if in the case of one-person company. अब ओपीसी के बारे में है ये क्वेश्चन, 122 सबसेक्शन 4। The resolution by such director is entered in the minute book, required to be maintained under section 118 and signed and dated by such director, and such date shall be deemed to be the date of the meeting of the board of directors for all the purposes। ठीक है जी, तो बी हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि पहले में क्या लिख दिया, शैल नॉट बी डीम्ड, दूसरे में लिख दिया शैल बी डीम्ड। तो जिस जिस डेट पे भी साइन किए ना वो वही डेट ऑफ मीटिंग मान ली जाएगी। मतलब ये है इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी। और वन पर्सन कंपनी में रिगार्डिंग बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड 122 सबसेक्शन 3। जो रेजोल्यूशन है इट इज एंटर्ड इन दी मिनट बुक्स एंड साइन एंड डेटेड, बस। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, तो ये आंसर शीट है। अगला देखते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड बुक्स ऑफ कंपनी, सेक्शन 88 to 95। Shivaham Telecommunications Limited is a newly formed public company engaged in the business of providing telecommunication services. The directors of the company appointed you and the company secretary to discuss about the management and administration। देखते हैं सेक्शन 88 खोल लीजिए एक बारी। सेक्शन 88, एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन, क्या क्या रखना है इसको। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रखना है, including separately for each class of equity and preference shares held by each member residing in or outside India। Register of debenture holders रखना है, register of any other security holders रखना है। Every register maintained under subsection 1 shall include an index of the names included therein। index भी आएगा इसमें। The register and index of beneficial owners maintained by depository shall be deemed to the corresponding register। अच्छा, a company may, if so authorized by its articles, keep in any country outside India in such manner as prescribed a part of the register referred to in subsection 1 called the foreign register containing the names। वो कह रहा है कि फॉरेन रजिस्टर जो है वो आउटसाइड इंडिया भी आप रख सकते हो। तो ये आपके प्रोविजंस हैं, ये सारी चीजें आपको रखनी है। फॉरेन रजिस्टर इंडिया में रखना जरूरी नहीं है, मतलब फॉरेन रजिस्टर आप फॉरेन कंट्री में भी रख सकते हो, इफ सो ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल्स। ठीक है, कीप इन, अदरवाइज तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है ना। The register and index of beneficial owners maintained by depository shall be deemed to be the corresponding register। जो डिपॉजिटरी ने मेंटेन किया हुआ है वही आपका रजिस्टर मान लिया जाएगा। ठीक, every register maintained under subsection 1 of section 88 shall include an index of the names included therein। ठीक है, तो इंडेक्स भी रखना जरूरी है आपको।
If a company does not maintain register of members or debenture holders or other security holders, तो कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी है? कंपनी के ऊपर पेनल्टी है 3 लाख रुपीस, ठीक है। और ऑफिसर के ऊपर कितनी पेनल्टी है? ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी है 50,000 रुपीज। ये आपका 88(5) है, सेक्शन 88(5) कर देता हूं उसको, थोड़ा थोड़ा और ठीक करते जाते हैं इसको। 88(5) और इससे पहले वाला था 88, ये भी 5 था, है ना। तो एवरी रजिस्टर, ये भी आपका 88, ये 2 पे है। साथ साथ लिखते रहा करो आप। अगला देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ होल्डिंग एंड डिस्क्लोजिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बेनिफिशियल ओनरशिप अंडर दिस सेक्शन 89। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कुछ रूल्स बना सकती है, मैनर ऑफ होल्डिंग एंड डिस्क्लोजिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स टू प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ होल्डिंग एंड डिस्क्लोजिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप, एंड आना चाहिए इसके बीच में, एंड बेनिफिशियल ओनरशिप अंडर सेक्शन, इसको छोड़ दो, अंडर सेक्शन 89 कर दो। 894। ठीक है, तो ये 89 हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं भी इतने बढ़िया होंगे, बट चलो कुछ तो रिवाइज हो रहा है ना, कुछ आइडिया तो लग रहा है ना। बैन इसी बहाने पढ़े जा रहे हैं सेक्शंस, अदरवाइज बोरिंग लगता है थोड़ा सा। इसको इस तरह से पढ़ दो ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट तो आता है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन ए शेयर इंक्लूड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट और अदरवाइज द राइट और एंटाइटलमेंट ऑफ ए पर्सन अलोन और टुगेदर विद एनी अदर पर्सन टू। बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ये सेक्शन 89 में दे रखा है। Both A and B. ये आपका 89(10) में दिया हुआ है। क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 90, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर इंक्लूड directly or indirectly through any contract arrangement or otherwise the right or entitlement of a person alone or together with any other person to exercise or cause to be exercised, receive or participate। हाँ, तो ये आपका सेक्शन 89 सबसेक्शन 10। तो दोनों चीजें, डिविडेंड और कोई राइट अगर एक्सरसाइज है, अगर राइट शेयर के साथ अटैच्ड है वो एक्सरसाइज कर सकता है, या फिर वो पार्टिसिपेट कर सकता है या रिसीव कर सकता है डिविडेंड, तो वो उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, इसका मतलब। इन रिलेशन टू एनी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर सेक्शन 89 बट नॉट मेड बाय द बेनिफिशियल ओनर। अगर बेनिफिशियल ओनर ये इंटरेस्ट नहीं डिस्क्लोज करता, ठीक है, तो क्या होगा? ये सेक्शन 89 में दे रखा। ये सेक्शन 89 सब सेक्शन 8 में दिया हुआ है। क्या कह रहा है? नो राइट इन रिलेशन टू एनी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बट नॉट मेड बाय द बेनिफिशियल ओनर शैल बी एनफोर्सेबल बाय हिम और बाय एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम। ठीक, तो हमारा इसका बी हो जाएगा आंसर 89(8). The central government may by notification exempt any class or classes of companies, persons from complying with any of the requirements of 89 except its subsection 10. If it is considered necessary to grant such exemption in the public interest, and any such exemption may be granted either unconditionally or subject to such conditions as may be specified.
ठीक है, तो ये हो जाए 89 सबसेक्शन 11। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिशन ग्रांट कर सकते हैं। इफ एनी पर्सन फेल्स टू मेक ए डिक्लेरेशन, तो ही शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी ऑफ, कितने पेनल्टी लगेगी? ये पेनल्टी दी हुई है सेक्शन 89 सबसेक्शन 5 5 में दे रखी है। पर्सन के ऊपर पेनल्टी है 5 में। क्या कहता है, कितनी पेनल्टी है? 50,000 रुपीज, और कंटिन्यूइंग फेलियर में 200 रुपीज, मैक्सिमम 5 लाख। तो 3 चीजें देखनी है, 50,000, 200 रुपीज और 5 लाख। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, है ना? ये 89 सबसेक्शन 5। अब ये पेनल्टी याद करना मुश्किल है थोड़ा, बट चलो। द कंपनी शैल फाइल, कोई जरूर पूछ भी सकता है, देखो कई बार पूछ लेता है पेनल्टीज पे को। द कंपनी शैल फाइल विद डैश फ्रॉम द डेट ऑफ receipt of declaration by it under section 89 a return in the prescribed form with the registrar in respect of such declaration with such fees or additional fees as may be prescribed। कितने दिन में फाइल करनी है डिक्लेरेशन? ये कंपनी को डिक्लेरेशन मिल गई बेनिफिशियल ओनर से, ठीक है ना, तो कंपनी कितने दिन में फाइल करेगी ये पूछ रहा है। 30 days। हाँ, विद इन 30 days, 89 सबसेक्शन 6, बिल्कुल सही। If a company is required to file a return, fails to do so before the expiry of the time specified, therein the company shall be liable। तो कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी है? ये दिया हुआ है 1,000 रुपीज, मैक्सिमम है 5 लाख। सी इज द आंसर। सी आंसर होगा। सी इज द आंसर। 1,000 रुपीज फॉर ईच डे, और मैक्सिमम हो गया 5 days। 5 लाख। हाँ बिल्कुल सही, कंपनी के ऊपर, बिल्कुल ठीक। तो 89 सबसेक्शन 7 है। और ऑफिसर के ऊपर कितनी पेनल्टी है? ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी है 2 लाख, 2 days। है ना? राइट। 100 रुपीज ईच डे, और फिर 2 लाख रुपीज। मैक्सिमम 2 days। हाँ, तो बी हो जाएगा आंसर इसका, 89 सबसेक्शन 7। A company shall give notice to any person whom the company knows or has reasonable cause to believe। किसको दे सकती है? या तो कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, या फिर उसको नॉलेज है, आइडेंटिटी ऑफ ए सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, और अनदर पर्सन लाइकली टू हैव सच नॉलेज। ये सेक्शन 90 में दे रखा है। ऑल द एबव। पहला, कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है उसको नोटिस दे सकती है। दूसरा, जिसको पता हो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का उसको। और तीसरा, जो पहले रह चुका है इन द इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, उसको भी नोटिस दे सकते। ये है हमारा सेक्शन 90 सबसेक्शन 5। The information required by the notice under subsection 5 of section 90 shall be given by the concerned person within a period। अब किसी आदमी को नोटिस मिल गया सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का, तो उसको कितने दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देनी? नॉट एक्सीडिंग 30 days। ये आपका लिखा हुआ सेक्शन 90 सबसेक्शन 6।
वेयर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंसर्न पर्सन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, या फिर वो इंफॉर्मेशन ही नहीं देता, ठीक है, तो कंपनी क्या है, ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगी विद इन प्रेस्क्राइब टाइम फॉर एन ऑर्डर दैट शेयर्स इन क्वेश्चन बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस, कि जो शेयर्स अटैच्ड हैं जिसपे भाई कंपनी को लगता है कि शेयर तो ए के नाम में है लेकिन इसका बेनिफिशियल ओनर बी है ना, और उसने कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं, तो कंपनी ट्रिब्यूनल को कहेगी कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दो। रिस्ट्रिक्शन किस किस चीज पर लगानी है, बात ये है। सर डी सर All the above. 97 90 हाँ। subsection 7 D. Answer is D. Directing that the shares in question be subject to restrictions with regard to transfer of interest, suspension of all rights attached to the shares and such other matters as may be prescribed। तो ये बिल्कुल ठीक है, सेक्शन 90 सबसेक्शन 7 है ना। 7. एवरी इंडिविजुअल हु होल्ड्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ नॉट लेस देन, कितने परसेंट होना चाहिए इसमें, 10%. shall make a declaration। कहाँ लिखी है बात ये, ऑफ नॉट लेस देन 25%, ये बात लिखी है सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 में, 25%. ये ध्यान रखना। सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, एवरी इंडिविजुअल हु एक्टिंग अलोन और टुगेदर और थ्रू वन और मोर पर्सन्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होल्ड्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 25% और सच अदर परसेंटेज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो जिसका 25% से ज्यादा उसको डिक्लेरेशन देना है। Every individual who has the right to exercise or the actual exercising of significant influence or control shall make a declaration specifying the nature of his interest and other particulars। जिसके पास राइट है टू एक्सरसाइज और द एक्चुअल एक्सरसाइजिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल एज डिफाइंड इन क्लॉज 27 ऑफ सेक्शन 2, इसको डिक्लेरेशन देना है। बिल्कुल सही है। ये बात लिखी है सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 के अंदर। इफ ए पर्सन फेल्स टू मेक ए डिक्लेरेशन, अगर कोई आदमी ऐसा डिक्लेरेशन नहीं देता तो कितनी पेनल्टी लगेगी, 50,000 90 clause 10 yes, so section 90 सब क्लॉज 10, इफ एनी पर्सन फेल्स टू मेक ए डिक्लेरेशन पेनल्टी लगेगी 50,000 और फिर 1,000 रुपीज फॉर ईच डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। These are six. बिल्कुल सही, बी हो जाएगा आंसर इसका, सेक्शन 90 सबसेक्शन 10। आपको लगता है पेनल्टीज वाले ज्यादा है तो स्किप कर सकते हैं और देख सकते हैं। इफ एनी पर्सन विलफुली furnishes any false or incorrect information or suppresses any material information of which he is aware in the declaration made under this section, he shall be liable to action under section 447। True. ये बात लिखी है सेक्शन 90 सबसेक्शन 12 में। क्या बोलते हैं ये सेक्शन 90 सबसेक्शन 12? सेक्शन 90 सबसेक्शन 12 बोलता है if any person willfully furnishes any false or incorrect information or suppresses any material information। तो एक्चुअली क्योंकि 447 में तो इम्प्रिजनमेंट भी है ना, 7 years. 7 years. हाँ, तो 447 जो है थोड़ा सीरियस सेक्शन है। Serious section.
A company may close the register of members or the register of debenture holders or the register of other security holders for any period not exceeding in the aggregate dash days in each year, but not exceeding dash at any one time. टोटल कितना कर सकते हैं और एट वन टाइम कितना क्लोज कर सकते हैं, ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज करते हैं ना डिविडेंड के लिए या बोनस के लिए, इस तरह से। ये सेक्शन 91 में दिया हुआ। एग्रीगेट तो है 45 डेज, ठीक है, लेकिन एट ए टाइम है 30 डेज। तो आंसर इज सी, सेक्शन 91 सबसेक्शन 1, टोटल 45 डेज और एट एनी वन टाइम मैक्सिमम 30 days. See. In case of default, the company and every officer who is in default shall be liable to a penalty of, अगर इसमें डिफॉल्ट हो जाता है 5,000 rupees. हाँ, पेनल्टी है 5,000 रुपीज फॉर एवरी डे और मैक्सिमम है 1 लाख रुपीज। 1 lakh. तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 91 सबसेक्शन 2। थोड़ी देर और कर लेते हैं अभी, है ना, जितना हो जाए उतना अच्छा। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर इट्स एनुअल रिटर्न इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इंक्लूडिंग देयर इन सच पर्टिकुलर्स एज बीइंग प्रेस्क्राइब्ड ऑन द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करनी है इसको ऑन द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। True. सही। 92 सबसेक्शन 1। The annual return of the company shall be signed by, कौन कौन साइन करेगा इसको? Director and company secretary in practice. डायरेक्टर एंड दी कंपनी सेक्रेटरी। और अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो Company secretary in practice. हाँ, ठीक है, तो इधर ए और बी, है ना, सी आंसर हो जाएगा इसको। सेक्शन 92 सबसेक्शन 1। In relation to one person company and small company, one person company या small company में क्या होगा? D. Yes. Either company secretary or director. Yeah, right, बिल्कुल ठीक है। तो 92 सबसेक्शन 1 का फर्स्ट प्रोवाइजो। The annual return filed by a listed company or by a company having paid up capital, such capital and turnover as may prescribed shall be certified by, जो listed company है, Company secretary in practice. हाँ, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। Either बेसिकली company. वो कंप्लायंस की बात करता है ना, तो इसीलिए तो आंसर विल बी बी, क्योंकि ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट देता है कि इट हैज कंप्लाइड विद द ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो आंसर विल बी बी, सेक्शन 92 सबसेक्शन 2। Every company shall place a copy of the annual return on dash of the company, if any, and the web link of such annual return shall be disclosed in the Website of the company. वेबसाइट। तो ठीक है, और वेब लिंक जो है ये कहां पर डिस्क्लोज होगा? बोर्ड रिपोर्ट में, ठीक है। Board report. आंसर विल बी ए, सेक्शन 92 सबसेक्शन 3। Every company shall file with the registrar a copy of the annual return within how many days? 60 days. 60 days. ठीक है, तो 60 डेज इसका आंसर हो जाएगा। और सेक्शन 92 सबसेक्शन 4। Every company shall file with the registrar a statement specifying the reasons for not holding the AGM in case where no AGM is held in any year within how many days from the date on which the AGM should have been held.
जब एजीएम होनी थी और नहीं हुई, तो कितने दिन के अंदर कंपनी को ये फाइल करनी है? within 30 days. विद इन 60 डेज है। 60 days. क्या बोलता है? एवरी कंपनी शैल फाइल विद रजिस्ट्रार ए कॉपी ऑफ द एनुअल रिटर्न विद इन 60 डेज from the date on which AGM is held, or where no AGM is held in any year within 60 days from the date on which the AGM should have been held. ठीक है, तो ये नो AGM is held है तो 60 days, आंसर इज 60 days। सेक्शन 92 सबसेक्शन 4, चाहे एजीएम हो चाहे ना हो, आपको दोनों सिचुएशन में 60 डेज में ही बताना है। इफ ए कंपनी फेल्स टू फाइल इट्स एनुअल रिटर्न, तो कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी? 10,000 रुपीज 10,000. और 100 रुपीज और 2 लाख रुपीज है कंपनी के ऊपर। हम्म। तो आप देखिए 10,000, 100 और 2 लाख। A. 10,000, 100 और 2 लाख। आंसर ये हो जाएगा सेक्शन 92 सबसेक्शन 5। और ऑफिसर के ऊपर कितनी पेनल्टी है? 10,000. हाँ, ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी है 5,000. 10,000 है, और पर डे पेनल्टी है आपकी 100 रुपीज, और फिर 50,000 है 50,000. इसके ऊपर ऑफिसर। ठीक है ना, 10,000, 100 और 50,000, तो आंसर सी हो जाएगा, C. है ना? सी होगा इसका आंसर 92 सबसेक्शन 5। If a company secretary in practice certifies the annual return otherwise than in conformity with the requirement of section 92, he shall be liable to a penalty. कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर कितनी पेनल्टी है? 2 lakhs, 2 lakhs. पेनल्टी ऑफ 2 लाख रुपीज, राइट। तो सेक्शन 92 सबसेक्शन 6। The registers required to be kept and maintained by a company under section 88 and copies of the annual return shall be kept at the 94 at the registered office of the company. तो इन दोनों में से ऑप्शन कौन सी चूज करोगे आप? सी ऑप्शन चूज करोगे, और क्या, है ना? Register head office. Registers or copies of return may also be kept at any other place in India in which more than dash of the total number of members entered in the register of members reside if approved by a dash resolution. तो क्या आंसर होगा इसका? 1/10 no, B. 1/10 तो ठीक है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा या स्पेशल रेजोल्यूशन होगा? C sir, 1/10 C. यस, तो स्पेशल रेजोल्यूशन है, ये प्रोवाइजो है 94(1) का प्रोवाइजो, सेक्शन 94 सबसेक्शन 1 फर्स्ट प्रोवाइजो। नेक्स्ट देखते हैं। Any member, debenture holder, other security holder or beneficial owner or any other person may Either A or B. बिल्कुल ठीक। C sir, यस, C. सी शुड बी द आंसर। तो इसका है आपका 94 सबसेक्शन 3। नेक्स्ट देखिए, ये वाला चैप्टर पूरा कर लेते हैं, है ना?
इसको क्यों छोड़ना बीच में? इफ एनी इंस्पेक्शन, बस लास्ट ईयर, इफ एनी इंस्पेक्शन or the making of any extract or copy required under this section is refused, the company and aviary officer, ठीक है, अगर इंस्पेक्शन से कोई रिफ्यूज कर देता है या कॉपी नहीं देता तो कितनी पेनल्टी है? 1 lakh, sir. ये लिखा है 1000 रुपीज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज, तो आंसर विल बी बी, ठीक है। सेक्शन 94 सबसेक्शन 4 है ना, सबसेक्शन 4, ये आंसर है इसके। उसके बाद बाकी आप देख लीजिएगा, है ना, फिर 1-2 दिन बाद फिर करते हैं इसको। आप अपने आप भी इसको ट्राई करिए, या एक पर्टिकुलर कोई करना होगा, जैसे वाइंडिंग अप जरूरी है, वाइंडिंग अप कर लेंगे, एनसीएलटी का कर लेंगे। देखो एनसीएलटी पे सवाल पूछता है वो कई बार, है ना, तो मैं तो ये कहूंगा आपसे एनसीएलटी जरूर याद कर लीजिए इसमें से, और वाइंडिंग अप जरूर याद कर लीजिए, ये 2 तो मिनिमम कर ही जाए। और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पूछ सकता है, केस स्टडी भी बना सकता है वो इसके ऊपर, ठीक है ना। हमने तो पूरा ही कवर किया है कंपनीज एक्ट, बट देख लीजिए जितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं उतना अच्छा है। जिसने भी बनाया बहुत मेहनत से बनाया, मैंने एक स्टाफ को लगाया था, उसने स्पेशल बनाया है, ये हर सेक्शन को पढ़ा फिर उसके ऊपर ही बनाया, जैसा भी बनाया बट ठीक ही है, नॉट बैड। कम से कम इतना तो याद हो जाएगा ना, इतना याद हो जाएगा फिर, और इसके आगे तो आप बढ़ सकते हैं फिर। ओके जी, गुड नाइट।